वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम के मैप का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय के मैप, हाउ द के मैप विल बी फॉर्म फॉर 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स, एंड देन हाउ टू डू द ग्रुपिंग इन द के मैप। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन टेक्निक बाय यूजिंग कर्नॉफ मैप। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ नोन एज अ के मैप। सो वी हैव रिड्यूस द लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू रिड्यूस द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द बुलियन लॉज एंड द बुलियन थ्योरम्स। ओके, सो दिस के मैप इज also a technique to reduce the Boolean logic expression into the short form. So to achieve a minimum reduction of logical expression, one has to understand the Boolean laws or theorem. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि अगर Boolean इक्वेशंस को अगर रिड्यूस करना है शॉर्ट फॉर्म में, सो वी नीड द better knowledge of these Boolean laws and the theorems. So while simplifying the Boolean expression, we have to think precisely and take the next step carefully. So that is the one of the disadvantage of these Boolean laws and the theorems, that for simplification of complicated Boolean expression we have to think precisely and take the next step in the solution, but this may lead to uncertainty about the final reduced expression we have achieved. ठीक है, तो इसमें जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा बाय यूजिंग दिस Boolean laws and the theorem, so that can be has a uncertainty, because if there is a complex equation or complex Boolean expression is there and we have to reduce it into the shorter form by using the Boolean expression, then at that time it is possible that uh, the answer will be a vary. So that's why we use the K map for simplification of Boolean algebra or Boolean expression for a complex form. So in short, we require a method which will reduce this uncertainty. So the answer is K map. So to reduce this uncertainty, we use the K map technique to reduce the given logical expression. Then we'll see what is meant by K map. So thus the K map or Karnoff map is a graphical means for representing Boolean or logical expression so that they can be minimized or simplified as a SOP, means sum of product and product of sum, POS form. It is also known as a Witch diagram. Okay, so this K map is a graphical means for representing this Boolean or logical expression so that they can be minimized or simplified as a SOP and POS form. तो SOP एंड POS फॉर्म का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो उस फॉर्म में ये आपके जो आउटपुट y, ठीक है, ये रिड्यूस होगा बाय यूजिंग दिस के मैप टेक्निक। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक्स रिगार्डिंग द के मैप। ठीक है, अभी हम उसके बाद देखेंगे वेरिएबल्स इन द के मैप। सो स्टैंडर्ड 2, 3, 4 वेरिएबल के मैप्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2, 3 एंड दिस 4, दिस 2, 3, 4 आर द इनपुट्स which are given in the truth table or the inputs simply. So depending on the inputs there are 2, 3, 4 variables of K map is there. So we are basically taking the graphical chart for these 2, 3 and 4 variable K map, means how we form the K map for 2 variables, or if the inputs are 3 or if the inputs are 4. So first figure shows the K map for 2 variable. So it consists of the 4 square. It is a 2D diagram, 2 dimensional. So it has a 2 variable map. So there are 4 cells. This one square is called as a cell.
So it is first, second, third and fourth cell is there. Second figure shows the 3 variable K map. So it has a 8 cells. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 variable or 8 cells are there. So this is the K map for 3 variable. Third figure shows the K map for 4 variable. It consists of 16 cell, that is start from the 0 to 15. So total 16 cells are there in the 4 variable K map, and there is a formula to calculate this number of cells, that is 2 raised to n, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है. So for 2 variable 2 raised to 2, 2 raised to 2 are 4, so there are 4 cells are there. For 3 variable 2 raised to n is 2 raised to 3, it is 8, so total 8 cells are in K map. So that is the standard form for 2, 3 and 4 variables, and generally 2, 3 and 4 variables पे ही एग्जाम्पल आएगा पेपर में, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 4 वेरिएबल. सो हियर दैट फॉर्मूला इज गिवन. इफ n is equal to 2, n is the number of inputs, so it requires the 4 cell. If n is equal to 3, it requires the 8 cells in the K map. If n is equal to 4, it requires the 16 cells in the K map. Then we'll see the actual how these 2, 3 variable K maps will be formed. That is the standard form. First we'll see the 2 variable K map, how the given truth table can be transformed into this K map, means output of the given truth table can be transformed into this K map. So first we'll take for the 2 variable. So in 2 variable we know that 2 raised to 2 are the 4 cells are required. So here 4 cells are there, first, second, third and fourth. And in digital we know that the first term start with the 0, so 0, 1, 2 and 3. So total are 4 cells in the 2 variable K map. तो यहाँ पे अभी इनपुट जो है ट्रूथ टेबल दिया हुआ है हमें, A and B are the input, and suppose this min term is a output y. K map में हमें सिर्फ यहाँ पे आउटपुट पुटअप करना है फॉर द रिस्पेक्टेड इनपुट, because you know that truth table gives the relation between inputs and output, and in K map we are only putting the output y in terms of input. ठीक है, तो इनपुट में जो जो कंडीशंस है उस कंडीशन में आउटपुट क्या है यही हम K map के बॉक्सेस में यहाँ पे पुट करेंगे इन शॉर्ट. तो अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है A and B. सो एट द टॉप एंड A is there and at the bottom end B is there. So there are 2 possibility for A. Suppose A is 0 or A is 1. 0 A means that's why we are denoted as a bar. For A it is as it is. Same for B. There are 2 conditions. If B is 0 first and B is 1, so this 0 is B bar and B as it is for 1. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है when A and B are 0, so this A is 0, B is 0. ठीक है, तो ये आपका रो फॉर्म है एंड कॉलम फॉर्म है. फर्स्ट कंडीशन A and B are 0, so first term min terms is M0, so this M0 will be in first box. Second condition A is 0, B is 1, that is A is 0 and this B is 1, so this M2 term is there. Third, A is 1, B is 0, that is A is 1, B is 0, so this M2 term will be there. And the next term is when A is 1 and B is 1, this A is 1 and B is 1, so M3 will be there. ठीक है, तो इस तरह से हमने आउटपुट ट्रांसफॉर्म करना है K मैप में विथ रिस्पेक्टिव इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है फिगर 2 में. ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक निकाल सकते हो एंड सेकंड फिगर इज इजी.
ठीक है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स के मैप में प्लॉट किए, ठीक है, सिंपली। आप उसे इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, फर्स्ट बॉक्स इज 0, सेकंड इज 1, देन 2 एंड 3, 0 1 2 3 मीन्स इट इज़ अ 4 सेल, मीन्स इट इज़ अ 2 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो जैसे 0 है तो यहाँ पे ए एंड बी का कंडीशन क्या आएगा, इन बाइनरी 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 0 and in the 1 it can be represented as the 0 1, so that's why it is 1. Next condition is 1 0 means 2 in the decimal and this 1 1 means 3, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो, 0 1 2 3, या फिर जो अभी मैंने बताया कि 0 0 देन 0 1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। नहीं तो थर्ड कंडीशन है बी का जो वैल्यू है वो रहेगा 0 या 1, ए का 2 पॉसिबिलिटी 0 और 1, एंड उसके बाद यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड जो आउटपुट्स दिए रहेंगे ट्रूथ टेबल में वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल के मैप। देन विल सी द 3 वेरिएबल के मैप, हाउ इट इज़ फॉर्म। So in case of 3 variable K map, we know that 8 cells are there from 0 to 7, okay. So in that the inputs are 3, तो यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, it consists of the 3 inputs A, B and C and the output is minterms and the decimal points are given from 0 to 7. So in that A, B, C are the inputs, so for BC is at the टॉप एंड एंड ए इज़ एट द बॉटम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो BC के लिए कंडीशन होगा वो 0 0 0 1, ठीक है, देन 1 1 एंड 1 0 मीन्स इट इज़ 0 इन डेसिमल, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है 0 1 3 2। तो यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना कि ये सीरियल वाइज नहीं है, 0 1 2 3 नहीं है, 3 2, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। उल्टा रहेगा 0 1 फर्स्ट 3 एंड देन 2, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ए की वो है ए मीन्स ए कैन बी अ 0 और ए कैन बी अ 1। तो फर्स्ट कंडीशन है ए बी सी आर 0, दिस ए इज 0 एंड दिस बी सी आर आल्सो 0, सो एट दैट टाइम फर्स्ट मिन टर्म M0 विल बी देयर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉक्स में जो आउटपुट है M0 वो यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। सेकंड जो टर्म है वो A, B एंड C इज़ 1, सो दिस A इज़ 0, B इज़ 0 एंड दिस C इज़ 1, सो इन दैट कंडीशन दिस M1 विल बी देयर इन सेकंड बॉक्स which is at the position of 1. Third condition, A is 0, B is 1, C is 0, so that is means 2, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पे भी बॉक्स 2 का बॉक्स है वहाँ पे आप उसका आउटपुट पुटअप कर दोगे, दैट इज़ M2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, 0 1 3 2 4 5 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंजेस है, पहले 7 आएगा देन आफ्टर 6, जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट 3 है देन 2 है, उसी तरह से बॉटम रो में भी आपका पहले 7 रहेगा देन 6 इज़ देयर, ठीक है। तो ये इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेसिमल पॉइंट है वहाँ पे आप रिस्पेक्टेड डेसिमल पॉइंट पे आप आउटपुट पुटअप कर सकते हो डायरेक्टली, इसे आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि A 0 एंड देन B 0 एंड C 0, देन इन दैट बॉक्स वी पुट द आउटपुट, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे 2 है, 3 पे M3 पे जो कंडीशन है वो 0 1 1 है, ठीक है, मीन्स एट द 3 वी पुट डायरेक्टली M3। फोर्थ कंडीशन पे दिया है आपका M4, इसे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अगर हमें ये सब नंबर्स अगर याद है कि कौन से बॉक्स में हमें किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करना है। तो
देन 5 पे M5, 6 पे M7 एंड 7 पे M7, 6 पे आपका M6, इस तरह से। ठीक है, तो अब इस तरह से भी के मैप को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन विल सी द 4 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल का के मैप आप हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हो, जो एग्जांपल हमने देखा वो हॉरिजॉन्टल देखा। ठीक है, आप वर्टिकली भी उसको पुटअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, बॉटम में 2 इनपुट्स कंसिडर किए BC एंड टॉप में ओनली 1 इनपुट इज़ देयर। ठीक है, वहाँ पे उल्टा था हॉरिजॉन्टल के मैप। ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल इनपुट था आपका एट द बॉटम एंड एंड एट द टॉप एंड देयर आर 2 इनपुट्स। ठीक है, तो दोनों भी फॉर्म एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक निकाल सकते हो 2 एंड 3 वेरिएबल्स के मैप फॉर्म करने के लिए। So in 4 variable K map, you know that 2 raised to 4 are 16. So there are 16 cells in the 4 variable K map. So in figure 1, it is given A, B, C, D are the 4 inputs. So AB at the bottom end and CD at the top end. Okay, तो इस तरह से ये 4 वेरिएबल का आपका K map बनेगा। उसमें अभी हमें नंबर ऑफ सेल्स प्लॉट करने। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशंस आएंगी वो 0 to 15 मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बिकॉज 16 सेल्स आर देयर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे फंडामेंटल यूज़ होगा जो अभी हमने 3 वेरिएबल्स में यूज़ किया। फर्स्ट 0 1, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट रहेगा फर्स्ट 3 एंड देन 2, 3 एंड 2, अगेन 4 5 सेम, then there is a change, first 7 is there and thereafter that 6 is there। ठीक है, then 12 13 15 and 14, यहाँ पे भी चेंज है, फर्स्ट 15 आएगा देन उसके बाद 14 का सेल आएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 8 9, अगेन 11 इज़ फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट 10। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। 0 1 3 2 4 5 फर्स्ट 7 देन 6। ठीक है, इसके बाद 8 9 का सीरीज़ नहीं है, फर्स्ट लास्ट वाला सीरीज़ आएगा 12 13 वाला। ठीक है, तो जिसमें 15 फर्स्ट है एंड 14 लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट सेकंड जो सेल है 2 सेल। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, पहले 3 है उसके बाद 2 है, अपोजिट है देन 7 6 15 14 11 एंड देन 10। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको सेल्स पुटअप करना है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा भी गलती हुआ तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 4 वेरिएबल का के मैप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए बी की जो कंडीशन है वो 0 0 0 1, देन दिस 1 1 एंड 1 0 इज़ देयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 0 1 3 2 सेम फॉर्म में यहाँ पे भी सेम रहेगा। सी डी की जो कंडीशन है, फर्स्ट 0 0 मीन्स 0 0 1 मीन्स 1 1 1 मीन्स 3 एंड दिस 1 0 मीन्स 2। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन सेम रहेगा 0 1 3 2 0 1 3 2। ठीक है, आपको सिर्फ ये नंबर्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिस्पेक्टेड सेल में जो डेसिमल नंबर है वो क्या रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि 2 एंड 3 एंड 4 वेरिएबल के मैप को किस तरह से फॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे कि गिवन ट्रुथ टेबल को किस तरह से के मैप में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल लेंगे हम 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल सपोज आपको दिया हुआ है एंड वी हैव टू सॉल्व द और वी हैव टू फॉर्म द बुलियन इक्वेशन बाय यूजिंग द के मैप एंड रिड्यूस इट। तो ट्रुथ टेबल को फर्स्ट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा के मैप में। तो यहाँ पे क्लियरली पता है आपको कि 2 इनपुट दिए ए एंड बी। सो 2 raised to 2 मीन्स 2 वेरिएबल का के मैप यूज़ होगा जिसमें 4 सेल्स होंगे। ठीक है, तो पहले हम के मैप के जो
बॉक्सेस है वो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो ए एंड बी बोथ आर द इनपुट्स, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर बी, फर्स्ट इज 0 and second is 1. For a, first is 0, second is as a 1. Okay, then we know that the cell position first is 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 है मीन्स 0 0 मीन्स 0 इन डेसिमल, ठीक है। तो वहाँ पे आउटपुट ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि के मैप गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो 0 0 इज y हमें क्या दिया है 0, सो 0 विल बी राइट इन फर्स्ट बॉक्स। सेकंड इज 1, सो एट द 1 पोजिशन ऑफ डेसिमल द आउटपुट विल बी अ 1, सो पुट द आउटपुट y एज अ 1. थर्ड कंडीशन इज 1 0 मीन्स 2, so in 2 the next output will be denoted as a 1, and the last condition is 3, that is 1 1, so at that time the output y is 0, so that can be a put at the this condition of 3. so इस तरह से हमें के मैप में ट्रुथ टेबल को का जो आउटपुट है उसे पुटअप करना है विथ रिस्पेक्टिव इनपुट्स। सेम तरीका यूज़ करना है 3 वेरिएबल के मैप्स के लिए, उसका भी एग्जांपल लेते हैं हम। सो वी नो दैट फॉर 3 वेरिएबल्स के मैप 8 सेल के मैप इज यूज। सो ए बी सी आर द इनपुट्स, सो वाई इज गिवन विच इज द आउटपुट, so we have to put this output with respect to the inputs. So a, this is the horizontal k map is given or form, so a at the bottom end and bc at the top end. Okay, so we know that the respected cell position first is 0, then 1, then first take the 3 and then second is there 4 5 as it is, then again 7 is taken as the first and 6 at the last, and the transform these values y into the k map. So first is 0, so this is 0 0 0 0 means in decimal it is 0, so this is y as the 1, then 1 0 0 1 means 1, so this is 0 will be transformed at the 1 position cell, then 0 1 0 means 2, so at the 2 the y will be transformed, then after that 0 1 1 means 3, so at the 3 position we transform its output which is 0, then for 4 it can be a 1 because 1 0 0 means 4 in the decimal, and this 1 0 1 means 5, so output y is 0, we can transform it into, then 1 1 0 means 6 in decimal, so at the 6th position the output will be a 0, so put here, and the last condition is 1 1 1 means 7, so in 7 condition the output y is 1, so put here. तो इस तरह से 3 वेरिएबल का के मैप आप जो ट्रुथ टेबल दिया है उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो के मैप में 3 वेरिएबल्स के, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू ग्रुप इनटू द के मैप में ग्रुपिंग किस तरह से करना है। सो थैंक यू।